SC Fundamental RK Rajput. Question number 61. The power factor at resonance in RLC parallel circuit is कौन RLC circuit रो RLC circuit रो parallel अच्छे ता resonance frequency केते ना unity केते ना unity केमती कहला जैसे ये 90 डिग्री होगा को इंडक्टिव सर्किट 90 डिग्री 0 और कैपेसिटर 90 डिग्री भी 0 तो पावर फैक्टर 0 0 काटिया रेजिस्टिव सर्किट रो पावर फैक्टर होची यूनिट तो रहला यूनिटी केमती काढी परिया 62 in the case of an unsymmetrical alternating current the average value must always be taken over ऑप्शन देखिए अनसिमेट्रिकल पार्ट द वेव फ्रॉम द क्वार्टर साइकिल द हाफ साइकिल द होल साइकिल तो सब सिमेट्रिकल हो कि होल सीधे तो होल पार्ट को नहीं आस सब होल को ही नहीं टोटालटा को नहीं काढ़ ना तो कौन आसो ऑप्शन ना ऑप्शन डी 63 in a pure resistive circuit कहला pure resistive circuit pure resistive circuit टोटल रेजिस्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कौन होता है ना करेंट और वोल्टेज इन फेज था ये होची आई ये होची भी इन फेज रे तो देखिए करेंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज ना करेंट लीड द वोल्टेज 90 डिग्री ना करेंट लीड और लेग द वोल्टेज 90 ना करेंट इन फेज सब इन फेज था ये करेंट आई डायरेक्ट तो इन फेज ऑप्शन डी in a pure inductive circuit कहला तो pure inductive circuit pure inductive circuit कौन ये वोल्टेज ये लीड केटा देगी करिवा 90 डिग्री आई आई लेग करछि 90 डिग्री तो देखिवा in a pure inductive circuit the current is in phase with the voltage ना current lag behind the voltage by 90 degree the current lead the voltage 90 degree the current lead the lead or lag ना हो 64 B ऑप्शन तो ना 64 B the current lag the behind voltage by 90 degree voltage lag করছে 90 degree current 90 degree lag করছে 65 लिखा in a circuit connecting RLC in power loss can be taken place in ଗୋଟେ circuit ଅଛି RLC power loss can be taken place in power loss ଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ तो आम जाने इंडक्टिव सर्किट रे पावर लॉस 0 इंडक्टिव सर्किट रे पावर लॉस 0 VI cos phi 0 आइतला कैपेसिटिव सर्किट रे पावर लॉस 0 यूनिटी सर्किट रे रेजिस्टिव सर्किट रे होची यूनिटी 1 तो R only inductance of coil is inductance of coil एक होची inductance of coil is unaffected by supply frequency तानी ये inductive reactance मागचे एक्सेल में inductance में inductive reactance होता है तो inductive reactance तो ऑप्शन आंसर से inductive reactance of coil is XL equal to 2 pi FL तो देखिए it is unaffected by the supply frequency affected पकेवा ना
डिक्रीज विथ द इनक्रीज द सप्लाई डिक्रीज करने इनक्रीज हम ना या को इनक्रीज करने ये भी इनक्रीज हम या को डिक्रीज करने ये भी डिक्रीज हम इनक्रीज विथ इनक्रीज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी बिकम जीरो विथ इनक्रीज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी सी इनक्रीज विथ इनक्रीज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इनक्रीज कर सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी इनक्रीज हम ऑप्शन सी in an AC circuit always AC circuit always AC circuit देखिए apparent power is more than the actual power reactive power is more than the apparent power actual power is more than the reactive power is more than the actual power তো AC circuit আমরা জানছি এটা কোন পাওয়ার শো করে এটা ট্রু পাওয়ার বা অ্যাকচুয়াল পাওয়ার ট্রু পাওয়ার বা অ্যাকচুয়াল পাওয়ার কিলোওয়াটে শো করতে এটা তো আমরা জানছি রিয়েক্টিভ পাওয়ার এটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার तो apparent power greater than actual power और actual power को कौन बोला ट्रू पावर तो पावर फॉर्मूला कौन था पावर इक्वल टू ट्रू पावर बाई apparent पावर तो ये है आंसर हम तो 67 नंबर कौन कहला द apparent power is more than the actual power apparent power greater than the actual power apparent power is more than the actual power option A which of the following circuit component oppose the change in the circuit voltage कहला which of the following circuit component oppose the change in the circuit voltage तो सर्किट वोल्टेज कौन सा एक चेंज करता है हम जाने C इक्वल टू dV बाई dt तो कैपेसिटिव सर्किट रिएक्टिव पावर कैपेसिटिव सर्किट which the following circuit the component oppose the change in the circuit voltage कैपेसिटिव सर्किट दा वोल्टेज को चेंज करता है इंडक्टर सर्किट करंट को चेंज करता है in a pure inductive circuit pure inductive circuit actual power is 0 reactive power is 0 apparent power is 0 none of the above 69 a actual power is 0 प्योर इंडक्टिव सर्किट केमती 90 डिग्री एक्चुअल पावर इज 0 तो एक्चुअल पावर का 0 पावर फैक्टर इन इलेक्ट्रिक बॉल इज यूनिटी तो इलेक्ट्रिक बॉल पावर फैक्टर कहते हैं ना यूनिटी प्योर इंडक्टिव सर्किट टेक पावर फ्रॉम द एसी लाइन व्हेन a pure inductive circuit take the power from the AC line when apply voltage decrease but the current increase गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट এটা गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इन द एसी सर्किट apply voltage decrease तो एसी सर्किट ये होती वोल्टेज वेवफॉर्म करंट 90 डिग्री स्टार्ट हो तो पावर कितने पावर 2F तो देखो এটা যে পাওয়ার ইয়ে ওয়েভফর্ম এটা পাওয়ার এটা ভি র এটা হচ্ছে আই র তো যেତେବେଳେ
ये वोल्टेज पहुँची डिक्रीज है पावरटा से टाइम कौन हो वोल्टेज इनक्रीज हो एप्लाई वोल्टेज डिक्रीज बट द करेन्ट इज इनक्रीज ऑप्शन ए देखो ये जिते बेले वोल्टेजटा भीतर को पशिकी डिक्रीज यहाँ डिक्रीज होना से समय कौन हो करेन्टटा देखो इनक्रीज हो एप्लाई वोल्टेज डिक्रीज बट करेन्ट इज इनक्रीज ठीक अच्छे एप्लाई वोल्टेज इनक्रीज बट करेन्ट इज डिक्रीज ना भूल बट एप्लाई वोल्टेज करेन्ट इज इनक्रीज ना भूल बट एप्लाई वोल्टेज करेन्ट डिक्रीज भूल तो ऑप्शन ए टाइम constant circuit is the time in second taken after the application of voltage will ता करथलो सेतबे करथलो 72 63% आइथला मन अछि टाइम कांस्टेंट ता करथलो सेतबे ना अब कर दे तो देखिने फार्मूला कौन था u इक्वल टू टाइम कौन u इक्वल टू v इक्वल टू 1 माइनस e t बाय आर सी टाइम कांस्टेंट माइथला तो ताऊ सॉल्व करथिला हम t इक्वल टू टाउ 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 को फार्मूला कौन आर सी तो कौन है लिखा था u इक्वल टू v 1 माइनस e माइनस 1 तो e वैल्यू आम जानते पाई के e इक्वल टू e वैल्यू साधारणतः के 2.72 ये वैल्यूटा मन रख e वैल्यू 2.72 तब सॉल्व करिया तो 1 माइनस e माइनस 1 को जब सॉल्व करिया 1 माइनस e वैल्यू के e को आम e माइनस 1 को एमती लिखा 1 बाई e भी लिखिपर तो 1 माइनस e वैल्यू लिखा 2.72 जब एलसीएम का सॉल्व करिया 2.72 इंटू एलसीएम एटी कने 2.72 माइनस 1 जब दिस 2.72 1 कने 1.72 डिवाइडेड बाय 2.72 तो यहाँ सॉल्व करिया आसीबो कते ना 63.23 एतिके आसीबो या परसेंटेज कन्वर्ट करने 6.6323 को जब परसेंटेज कन्वर्ट कर 63.23% आसीबो तो केते परसेंट कहला हमर ऑप्शन सी 73 टाइम कांस्टेंट इन इंडक्टिव सर्किट गोटे इंडक्टिव सर्किट टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू हम जाने टाउ इक्वल टू इंडक्टिव सर्किट टाउ इक्वल टू एल बाई आर तो कौन से अनुसार देखा इसे इंक्रीज द इंडक्टेंस एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस ये कहला ये बढ़ने इंक्रीज द इंक्रीज द इंडक्टेंस एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस हो इंक्रीज द इंडक्टेंस एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस ना 73 increase with decrease in the inductance and decrease resistance ना increase with decrease of inductance and increase the resistance ये तो चिंता का भूल ये भूलता ना एक नंबर ही 73 ए ही ठीक 74 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर सर्किट तो कौन जानते टाइम इक्वल टाउ इक्वल टू टाउ इक्वल टू आर सी तो टाइम से क्या इंक्रीज विथ डिक्रीज द कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस इंक्रीज हो ना ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बढ़ने माने ये भी बढ़िबो ये कौन ना तो हेनी
increase with the decrease of capacitance, increase the resistance ना, increase with increase of capacitance and decrease the resistance ना, increase with increase the capacitance and increase the resistance. ऑप्शन डी, ये भी बोलना ये भी, increase with increase the increase of capacitance and increase the resistance. ऑप्शन डी 74, ऑप्शन डी. Magnitude of a current at resonance in RLC circuit. Resonance तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिजन कौन सा कहते हैं नाम जान से एक्सएल इक्वल टू एक्सी समान सब तो रिजन पे डिपेंड करनी तो क्या पे डिपेंड कर डिपेंड आर फॉर्मूला होते रिजन साइकिल फॉर्मूला होते आर ऊपर ही डिपेंड कर तो डिपेंड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर power factor of magnitude component of current of transformer is the current transfer power factor केते 0. बेसिकली तो जान जो पावर फैक्टर ट्रांसफॉर्मर काम लैगिंग करिवो इंडक्टिव कॉइल ट्रांसफॉर्मर इंडक्टिव तो लैगिंग करिवो करंट लैग करियो माने 90 डिग्री लैग कला ताने केते आसीबो ये cos फाई 90 डिग्री ताने v इंटू आई इंटू cos 90 फिर 0 ताने पावर फैक्टर केते आइबो ना 0. ऑप्शन सी पावर फैक्टर मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ करंट ट्रांसफर इज 0. एटी था फ्रेंड नेक्स्ट क्लास पे.